Hello students, today I am on the third phase of the second chapter, Basic Concepts of the Macroeconomics. I have given you the definition of goods, what type of the goods are there in an economy. Secondly, I told you regarding the sectors of an economy. We are having 4 sectors of an economy, and these sectors are interrelated and interdependent on each other. Here we are having two type of the flows in an economy. One is real flow and other is money flow. Whenever all the 4 sectors do the activities, then there one's income is expenditure of other, and one's expenditure is income of the other sector. For the 4 sectors are interrelated and are interdependent. Economy moves according to the circular flow of income among these all 4 sectors. तो यहाँ पे हमारे पास है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. ये दोनों तरह के फ्लो कैसे चलते हैं? रियल फ्लो वी आर हैविंग मेन, मैंने जैसे आपको उस दिन बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई. We are moving exactly in these two sectors. One is production sector and other is household sector. One is consumer sector and other is the producer sector. Basically, the activities are going between these two sectors. One is production sector and other is household sector. Production sector produces the goods, but whenever he has to produce the goods, he has to take the factor services from household sector. Household sector render their services to production sector in the form of landlord, capitalist, laborer and entrepreneur. Production is impossible without these 4 production factors of production. So these 4 factors of production render their services to the production sector, and with the help of these 4 factors of production, that are land, labor, capital and entrepreneur, producer can do the productions. And so that's why household sector की तरफ से factor services are moving towards production sector, right? सर्विसेज कहाँ गई? प्रोडक्शन सेक्टर में. एंड प्रोडक्शन सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोडक्शन सेक्टर किसे सेल करेगा? टू द हाउस होल्ड सेक्टर. ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर will send to the household sector again by production sector in the form of purchase of goods and services. Household sector will purchase those goods and services from production sector. Here I am not taking money. मैंने यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं की, बेटा ध्यान से देखना. मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की बात की है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सर्विसेज दी हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोडक्शन सेक्टर ने जो भी चीज़ें इन लोगों ने प्रोडक्शन की हैं, जो भी गुड्स are produced by household sector will go to the market, and from market that will go to the household sector in the form of final goods and services. And household sector will purchase these goods from production sectors. This is known as the real flow. This is known as the real flow. Real flow which goes from production sector to household sector and household sector to production sector. Second, the next is money flow. What is this money flow? Money flow बीच में name ही money का आ रहा है. It means here we will use money, exactly money. वो कैसे? Household sector render their services to production sector. Then production sector has to make the payment on the purchase of services. That is known as the factor services. So production sector will pay factor services like rent, wage, profit, interest. Here production sector will make the payment for the factor services in the form of money, that is
rent goes to the land, interest goes to the capitalist, rate of interest, wages will go to the laborer, and rest of the money will go to the entrepreneur in the form of profit. जो पैसा यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर में गया है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज पेमेंट, वही पैसा हाउस होल्ड सेक्टर विल यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स टू द प्रोडक्शन सेक्टर. सपोज इन्होंने इसे 100 रुपीज़ पे किए हैं फॉर फैक्टर सर्विसेज, वही 100 रुपीज़ हाउस होल्ड सेक्टर विल यूज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर. तो दोनों में आपस में क्या हो गया, मनी वर्सेस मनी. दिस इज द मनी फ्लो, राइट. और एक बात और देखना बेटे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो बोथ फ्लोज इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन. रियल फ्लो एंड मनी फ्लो कैसे? रियल फ्लो, I have given my services to production sector. For that, production sector has made the payment to me, right? Household sector से जो भी factors of production निकल के production sector में गए हैं for rendering their services, उन्होंने क्या किया? Services दी, this is real flow. और बदले में production sector ने उनको क्या किया? Payment दी, and this payment is money flow. So real flow and money flow both flows in an opposite direction, right? So again, this is the circular flow of income, intersectoral flow of income, which is in the two sectors, which is in the form of real flow and money flow. In real flow, we are just taking the goods versus goods or services, and in money flow, we will take goods, purchasing of goods in the form of money and payment of factor services in the form of money. क्योंकि जो भी ये पेमेंट्स इनके पास पहुंचेगी वही पेमेंट्स ही ये लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनकम. दिस इज द वन टॉपिक विच इज हेयर इन द फॉर्म ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो बेटा flows in three phases, that is production, income and expenditure. National production, it is the sum total of all the final price of all the final goods and services which are produced during an accounting year. Again I am repeating, national production is sum total of price of all the final goods and services produced during an accounting year. It can be like a summation of a PG, P for price and G for goods. And national income, it is a sum total of income of all the factors of production earned during an accounting year. ठीक है, तो चारों फैक्टर like rent plus wage plus profit plus interest, this is the sum of factor income. तो ये लगा सकते हैं हम, ठीक है. एंड नेशनल एक्सपेंडिचर, दिस इज द एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय ऑल द 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ये 4 सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये 4 सेक्टर्स में यहाँ पे सर्कुलेट होती है. बाकी चारों सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर एक्टिव हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इकोनॉमी. बिकॉज इफ द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी एट द टाइम, ये वाला सेक्टर जो है वो खत्म है. ओनली 3 सेक्टर्स विल बी देयर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. सी प्लस आई प्लस जी. And if the economy is capitalistic economy, there is capitalism, so naturally that is the non-interference of the government economy. तो वहाँ पे ये सेक्टर जो है ये भी पैसिव हो जाएगा. Only production sector and household sector will be there, right? तो
If the economy is a closed and capitalistic economy, then aggregate demand will be C plus I only. If the economy is closed but mixed or socialistic economy, at that time there will be three sectors: household sector, production sector, and government. And if the economy is mixed as well as open economy, then we will have four sectors in our economy. तो चारों के चारों सेक्टर जो है वो एक्टिवली काम करेंगे. अब ये आपको पता चल गया. तो नाउ आवर नेक्स्ट थिंग इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. As I told you, national income flows in four sectors of an economy: circular flow of income. As we know, we are having four sectors. One is household sector. Second is production sector. Third is government sector. Fourth is rest of the world. And one more, that is the financial market. Which is an important part of an economy. If the financial market is doing well, the economy will go on a fast track. Otherwise किसी भी इकोनॉमी में अगर मनी मार्केट जहाँ मतलब कि कैपिटल मार्केट, ये दो तरह की मार्केट्स होती हैं बेटा. मनी मार्केट विच गिव्स द लोन्स ऑन द फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड एंड कैपिटल मार्केट विच प्रोवाइड्स द लोन्स फॉर द लॉन्ग पीरियड टाइम. तो ये दोनों मार्केट्स जो है किसी इकोनॉमी में जितनी अच्छी जाएंगी उस इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ लेवल उतना ही तेजी से इंक्रीज होएगा. सो दीज आर द फोर सेक्टर्स. बेसिकली ये चार सेक्टर्स हैं. ये सेक्टर नहीं होता बेटा, बट ये हेल्पिंग सेक्टर है जो इन सारे सेक्टर्स को हेल्प करता है. अब हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करना है, तो इसके लिए हमें इन चारों सेक्टर्स में आपस में इंटर रिलेशंस देखने हैं. वी विल कोरिलेट दीज फोर सेक्टर्स विद ईच अदर. The very first is household sector is related to production sector. Why? Because it render their services to the production sector. Factor services. क्या जा रहा है बेटा यहाँ से, क्या पेमेंट हो रही है? फैक्टर सर्विसेज की, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. These are the four factor services which are provided by household sector to the production sector. And बदले में production sector will give the factor services payment, factor payment in the form of rent, wage, profit and interest. This is the factor income which is paid by production sector to the household sector. और बेटा जो पैसा यहाँ पे इनकम की फॉर्म में आया है वही पैसा household sector will spend on purchasing of goods from production sector. Purchasing of goods from production sector, क्योंकि जो पैसा यहाँ पे गया है वही पैसा मार्केट में फिर से चल जाएगा. तो इन दोनों सेक्टर्स में. और लीकेज एंड इंजेक्शंस की बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज कमिंग इनसाइड दैट इज द इंजेक्शन एंड व्हाट इज गोइंग दैट इज द लीकेज और विथड्रॉल. अब फैक्टर इनकम इज कमिंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर. इट इज द इंजेक्शन फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर बट withdrawal for the production sector. So it can be said that circular flow of income is the relationship between withdrawals and injections. इन दोनों में बैलेंस होना जरूरी है. Now we are going to the household sector as well as government sector. Household sector is paying direct taxes to the government. Direct taxes
means to say income tax. Income tax are imposed by government on the income of household sector. So these taxes are directly paid to the government. जिसके ऊपर ये टैक्स लगेगा उसी के ऊपर इसका फाइनल बर्डन पड़ता है. So that is why it is known as the direct tax, like income tax, like wealth tax, property tax. अब गवर्नमेंट क्या देगी? गवर्नमेंट विल पे ट्रांसफर पेमेंट. Transfer payment. What these transfer payments are? These transfer payments are one-sided income, one-sided payments, because ये सिर्फ यहाँ से वहाँ जाएगा, बदले में हाउस होल्ड सेक्टर इनको कुछ नहीं देगा. That's why it is known as the transfer payments and it is not part of national income. ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है बड़े? फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन. ओल्ड एज पेंशन होगी, डीएनएस अलाउंस विच इज पेड टू द पुअर पीपल, स्कॉलरशिप थ्रू द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. these all are known as the transfer payments will go to the household sector from production sector. Now we are coming on the relationship between government sector and production sector, right? अब देखो प्रोडक्शन सेक्टर क्या पे करता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर को? इनडायरेक्ट टैक्सेस. Indirect taxes. Indirect taxes like production tax, sale tax, these all GST. These all are the indirect taxes which go to the government sector from production sector. क्योंकि गवर्नमेंट जब भी बड़े प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करता है तो वो उसके लिए बदले में गवर्नमेंट को इस तरह के टैक्सेस पे करता है, और बदले में गवर्नमेंट सेक्टर क्या पे करती है बेटे? हाउस होल्ड सेक्टर को सब्सिडी. व्हाट इज दिस सब्सिडी? सब्सिडी इज द मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो देखा जाए तो एक एक्सपेंडिचर है पर प्रोडक्शन सेक्टर के लिए एक किस्म की हेल्प है. सब्सिडी इज पेड टू डू द प्रोडक्शंस इन दोज एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड. बहुत सारे एरियाज बेटे ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम करना नहीं चाहता, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके की सब्सिडीज़ वगैरह टाइप की कुछ मोटिवेशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं ताकि लोग वहाँ पे प्रोडक्शन कर सकें. ठीक है, तो सब्सिडी जो है विल गो टू द प्रोडक्शन सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ हेल्प. और एक बात और नोट करो बेटा, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये प्रोडक्शन सेक्टर पे लगेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बट प्रोडक्शन सेक्टर इनको फाइनल गुड्स जो मार्केट में जाती हैं उनकी प्राइस में इंक्लूड करके कंज्यूमर्स के ऊपर डाल देता है. ठीक है, बट जो सब्सिडी है, सब्सिडी की वजह से जो गुड्स हैं उनकी प्राइस मार्केट में कंपैरेटिवली कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल सब्सिडी प्रोवाइडेड ऑन द एलपीजी गैस. जो एलपीजी है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट सर्विसेज सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसकी वजह से वो सिलेंडर हम तक हाउस होल्ड तक कंपैरेटिवली लेसर प्राइस पे पहुंचता है. राइट, तो फिर बात वही आ गई, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीजेस द प्राइसेस बट सब्सिडी डिक्रीजेस द प्राइसेस. राइट, नाउ वी आर ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट, हाउस होल्ड सेक्टर. फाइनेंशियल मार्केट को क्या देगा? गवर्नमेंट सेक्टर फाइनेंशियल मार्केट को क्या देंगे? एंड प्रोडक्शन सेक्टर. इन सबकी सेविंग्स, हाउस होल्ड सेक्टर की जो भी सरप्लस पैसा है एक्सपेंसेस के बाद बचा है विल गो टू द फाइनेंशियल मार्केट इन द बैंक. दे विल डिपॉजिट देयर मनी, सरप्लस मनी इन द बैंक्स. एंड प्रोडक्शन सेक्टर ऑल्सो, इनकी जो सेविंग्स है विल ऑल्सो गो टू द फाइनेंशियल मार्केट. एंड गवर्नमेंट जो है उसकी सेविंग्स विल ऑल्सो गो टू द फाइनेंशियल मार्केट. हाउस होल्ड सेक्टर बैंक्स से क्या लेता है? बैंक्स गिव देम कंजम्पशन लोन्स. कंजम्पशन लोन्स मतलब भाई मैंने घर बनाना है, आई नीड मनी, मैंने घर खरीद लिया, उसकी मतलब ईएमआईज वगैरह उसके लिए
या हम लोग कोई भी चीज़ फाइनेंस करवा सकते हैं बैंक से कंजम्पशंस वगैरह के लिए, किसी किस्म की गाड़ी लेनी है तो दीज आर नोन एज द कंजम्पशन लोन विच आर मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट. प्रोडक्शन सेक्टर will take investment loans. प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर बेटा सारे के सारे पैसे अपने घर से नहीं निकालता, वो बाकी के जो पैसे हैं बाकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को लोन लेके पूरा करता है. एंड गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को अपने पब्लिक वर्क्स के लिए क्या लेना पड़ता है बैंक से? पब्लिक बोरिंग्स. So these are the relationship between these four sectors of the economy. This is not sector, but rest of the word is left. And rest of the word is related to production sector for the purpose of export and import. Export will cause income for the production sector, but import will cause the expenses for the production sector. That is why export is the biggest injection for production sector and import is the biggest leakage for the production sector. अब यहाँ पे जो भी पैसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू आएगा वो क्या होगा जी? विल बी एक्सचेंज्ड विद द हेल्प ऑफ बैंक्स. तो बैंक एक काम क्या करता है? मनी एक्सचेंज. ठीक है, हमने जब भी पेमेंट करनी है बेटा अब्रॉड में तो हम पेमेंट करेंगे उनकी अपनी करेंसी में. फॉर एग्जांपल फ्रॉम अमेरिका we will pay the price in the form of dollars, so we have to exchange our rupees in the form of dollars from financial market, right? Again, household sector is also related to rest of the world. वो कैसे? For the net factor income from abroad. Net factor income from abroad. ये क्या होता है बेटा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड. बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटे जो फॉरेन कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं हमारे कंट्री से, तो वहाँ से पैसा कमा के वो इंडिया में भेजते हैं. और बहुत सारे फॉरेनर जो हैं वो हमारे कंट्री में आते हैं, यहाँ पे आके पैसा कमाते हैं और वो पैसा कमा के अपने कंट्री में भेजते हैं. फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री के लोगों ने कितना पैसा यहाँ पे कमा के भेजा है और माइनस हमारे कंट्री में जो फॉरेनर्स रहते हैं वो उन लोगों ने कितना पैसा कमा के अब्रॉड में भेजा है. दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ इनकम रिसीव्ड एंड इनकम पेड. ठीक है, इट इज नोन एज अ नेट फैक्टर इनकम कि नेट हमने कितना पैसा वहां से अर्न किया है. फॉर एग्जांपल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज ऑफ 1000 रुपीज एंड इनकम पेड टू अब्रॉड दैट इज 800 रुपीज. तो 200 रुपीज विल बी अवर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द. यहाँ पे भी बेटा एक बात और है, हाउस होल्ड सेक्टर भी जो पैसा कमाएगा विल ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अदर करेंसीज. तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट करेंसी फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट. वी विल एक्सचेंज दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ आवर रुपीज और इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स एटसेट्रा. ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो हेल्प हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द एक्सचेंज ऑफ करेंसी, राइट? So this is the circular flow of income among four sectors of the economy. अब बेटा आप देखो ये जो इंटर रिलेशनशिप है ये सिग्निफिकेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए. कैसे? क्योंकि इसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि विच सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन अदर सेक्टर्स. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी का पता हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही पता चलेगा. और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द लीकेज,
कितने लीकेज हमारे कंट्री से कितने हैं, और इंजेक्शंस मतलब कि इनकम हमारे कंट्री में आई कितनी है, और हमारी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, हम दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट कितना है, हम अपने सेल्फ सफिशेंसी कितनी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितना फास्ट चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है। जितना ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फास्ट होएगा उतनी इकॉनमी इज़ नोन एज अ वेल डेवलप्ड इकॉनमी। जितना ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्लो होगा उतनी ही इकॉनमी विल बी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकॉनमी दिस सर्कुलर फ्लो शुड गो ऑन द इक्वल स्पीड, ऑन द बैलेंस्ड स्पीड। और यही सर्कुलर फ्लो हमें बताता है कि इनकम ऑफ द वन सेक्टर इज एक्सपेंडिचर ऑफ अदर सेक्टर, और expenditure of one sector is income of the other sector. And so here our second chapter is complete. You should learn it properly because this is the base for the third chapter, measurement of the national income. अगर आप इस सर्कुलर फ्लो के प्रॉपर तरीके से लर्न कर लोगे तो बेटे आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।